میں اتنا تکا ہوا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا، وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں بول نہیں سکتی۔ اس لیسن کے اندر میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے ایسے فقرے انگریزی زبان میں بولے جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اتنا، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو۔ کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ دیٹ، یاد رکھیے کہ ٹو یہ ڈگری آف ایڈورب ہے۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ کے بعد آ جایا کرے گا ہیلپنگ ورب، جس کو ٹو بی ورب یا آگزیلری ورب یا بی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹو کے بعد ہمیں لگانا ہے ٹو کے بعد آ جایا کرے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب، جس کو بیسٹ فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے۔ V1 کے بعد ہمیں یوز کرنا ہے ادر ورڈز اگر ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں اتنا تکا ہوا ہوں کہ باہر نہیں جا سکتا، I am too tired to go out. I am too tired to go out. اگر اس جملے کو دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہے، مثبت ہے، لیکن اس کا جو سینس ہے، جو میننگ ہے، وہ نیگیٹو، منفی نکلتا ہے۔ سو کیپ دس پوائنٹ ان یور مائنڈ، یاد رکھیے کہ جب ٹو یہ ایڈجیکٹو سے پہلے یوز ہوتا ہے تو اس فقرے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ نیگیٹو یعنی منفی نکلتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنا بوڑھا ہے کہ سڑک پار نہیں کر سکتا، He is too old to cross the road. He is too old to cross the road. He یہ سبجیکٹ ہے، is یہ ہیلپنگ ورب ہے، to یہ ڈگری آف ایڈورب ہے، old یہ ایڈجیکٹو ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جب to یہ ایڈجیکٹو سے پہلے آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اس جملے کا جو سینس ہوتا ہے، جو میننگ ہوتا ہے، وہ ضرور نیگیٹو ہوگا یعنی منفی ہوگا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی، وہ اتنی شرمیلی ہے کہ عوام میں نہیں بول سکتی۔ She is too shy to speak in public. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں، آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا، میں ابھی اتنا مصروف ہوں کہ بات نہیں کر سکتا، I am too busy to talk right now. I am too busy to talk right now. To talk اس کو انفینیٹو کہا جاتا ہے۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، یہ موبائل اتنا مہنگا ہے کہ خرید نہیں سکتے، دس موبائل از ٹو ایکسپینسو ٹو بائی، دس موبائل is too expensive to buy. One more example for better understanding، اتنا اندھیرا ہے کہ کچھ نظر نہیں آ سکتا، it is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ نظریں ہٹ نہیں سکتی، she is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding، تم اتنی قیمتی ہو کہ جانے نہیں دے سکتا، you are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding، وہ اتنی اچھی ہے کہ اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے، یعنی وہ اتنی اچھی ہے کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا، اس سے ناراض رہنا ممکن نہیں ہے۔ She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay mad at. Next example for better understanding، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ دکان نہیں جا سکتا، he is too small to go to shop. He is too small to go to shop. اور آخر میں یہ فقرہ آپ کے لیے کامن سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا، وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا،
वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या मैं दोबारा कोशिश करूं? क्या हम खेलें? क्या मैं इसका ख्याल रखूं? इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़क़रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आ जाया करेगा क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मैं दोबारा कोशिश करूँ यानी क्या मैं दोबारा ट्राई करूँ। एक किस्म ला परमिशन है। शैल आई ट्राई अगेन, शैल आई ट्राई अगेन। आई ये सब्जेक्ट है, ट्राई ये V1 है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या हम खेलें? शैल वी प्ले, शैल वी प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं इसका ख्याल रखूं? शैल आई टेक केयर ऑफ इट, शैल आई टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं? शैल आई मेक you breakfast, shall I make you breakfast। Next example for better understanding। क्या हम चलें? shall we go, shall we go। क्या मैं शुरू करूं? shall I start, shall I start। One more example for better understanding। क्या मैं उसे बुलाऊं? shall I invite him, shall I invite him। क्या हम सो जाएं? shall we sleep, shall we sleep। One more example for better understanding। क्या मैं वहाँ बैठ जाऊँ? shall I sit over there, shall I sit over there। Next example for better understanding। क्या हम खाना मंगवाएं? shall we order food, shall we order food। Next example for better understanding। क्या मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँ? shall I call you later, shall I call you later। और आखिर में ये दो फ़क़रात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या अब हम चलें, क्या अब हम चलें। और दूसरा फ़क़रा है क्या हम कल मिलें, क्या हम कल मिलें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। पानी है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई भी नहीं था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ एज, प्लूरल नाउन के साथ आर लगाना है। पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यूज करना है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी फ़क़रा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पानी है, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। वाटर ये सिंगुलर है, सो एज यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली अ वे, देयर इज ओनली अ वे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था यह पास्ट टेंस है, सो देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन। वाज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ यूज होता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाहर एक जोरदार शोर है, देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड, देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। रिपोर्ट में गलती है, देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट, देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट।
वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेज पर एक किताब था। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। क्लास में कोई नहीं है, क्लास में कोई नहीं है। देयर इज नो वन इन द क्लास, देयर इज नो वन इन द क्लास। वहाँ कोई था, वहाँ कोई था, ये भी पास्ट टेंस है। सो देयर वॉज समवन ओवर देयर, देयर वॉज समवन ओवर देयर। पानी नहीं है, हम कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सुनते हैं ऐसे फिक्र या खुद बोलते हैं पानी है या पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग ओवर देयर, देयर इज नथिंग ओवर देयर। और आखिर में ये दो फिक्रात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूध नहीं था, दूध नहीं था। और दूसरा फिक्रा है रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़िक्रों में हम कह रहे हैं जिस तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द वे। द वे मीन जिस तरह या जिस तरीके से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं ऐसे फिक्रों के लिए। सो पहले हमें यूज़ करना होगा द वे। द वे के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है मेन वर्ब, जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद आ जाया करेगा कामा, अगर लिखना है तो कामा के बाद हमें यूज़ करना है फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कैन। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह आप ख्याल रखते हैं कोई नहीं रख सकता। द वे यू केयर नो वन कैन, द वे यू केयर नो वन कैन। द वे मीन जिस तरह, यू केयर मीन आप ख्याल रखते हैं, नो वन कैन कोई नहीं रख सकता। बिल्कुल स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पढ़ाता है कोई नहीं पढ़ा सकता। द वे ही टीचस नो वन कैन, द वे ही टीचस नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह आप मुस्कुराते हो कोई नहीं मुस्कुरा सकता। द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन, द वे यू स्माइल नो बॉडी कैन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ और मिसालें देखते हैं। जिस तरह वो बोलता है कोई नहीं बोल सकता। द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन, द वे ही स्पीक्स नो बॉडी कैन। द वे मीन जिस तरह ही, ये सब्जेक्ट है, विच मीन वो स्पीक्स, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मेन वर्ब है विच मीन बोलना। नो बॉडी ये हमारा सब्जेक्ट है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह वो पकाता है कोई नहीं पका सकता। द वे ही कुक्स नो वन कैन, द वे ही कुक्स नो वन कैन। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम खेलते हो कोई नहीं खेल सकता। द वे यू प्ले नो बॉडी कैन, द वे यू प्ले नो बॉडी कैन। आइए देखते हैं ऐसे जुमले जिसमें हमें कहना हो जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं, जिस तरह वो बर्ताव करती है
उसे पसंद नहीं, या जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं। ऐसे फिक्रों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सो पहले हमें लगाना होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमें यूज करना है, अगर प्रेजेंट टेंस हो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमें यूज करना है डोंट या डजंट। डोंट ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी आई वी या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। डजंट ये सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा लाइक, और लाइक के बाद हमें यूज करना है द वे। द वे के बाद फिर हमें यूज करना है, लगाना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जिस तरह तुम बहस करते हो मुझे पसंद नहीं। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। आई डोंट लाइक द वे यू आर्ग्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जिस तरह तुम बोलते हो मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक। I don't like the way you speak. One more example for better understanding, जिस तरह वो कहता है मुझे पसंद नहीं। I don't like the way he eats. I don't like the way he eats. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। जिस तरह वो पकाती है कोई नहीं पका सकती। और दूसरा फकरा है जिस तरह तुम चलाते हो मुझे पसंद नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे फकरे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन फकरों में हम कह रहे हैं मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एश्योर यू दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एश्योर यू दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आई एश्योर यू दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा। आई एश्योर यू दैट आई विल मैरी यू। I assure you that I will marry you. I assure you that मीन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। I will marry you ये कंप्लीट सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, विच मीन मैं तुमसे शादी करूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। I assure you that I will teach you. I assure you that I will teach you. I will teach you ये सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस का, विच मीन मैं तुम्हें सिखाऊंगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई एश्योर यू दैट आई वोंट गो देयर। आई एश्योर यू दैट आई वोंट गो देयर। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं पढ़ूंगा। आई एश्योर यू दैट आई विल स्टडी। आई एश्योर यू दैट I will study. Next example for better understanding, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उससे मिलूंगा। I assure you that I will meet him. I assure you that I will meet him. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। I assure you that he won't come here again. I assure you that he won't come here again. Next example for better understanding, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। I assure you that I won't tell her. I assure you that I won't tell her. One more example for better understanding, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं वक्त पे आऊँगा। I assure you that I will come on time. I assure you that I will come on time. I will come on time ये complete sentence है, which mean मैं वक्त पे आऊँगा। One more example for better understanding, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो काम करेगा। I assure you that he will work. I assure you that he will work. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा।
मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुमसे बात करेगा। दूसरा फकरा है, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ दोबारा नहीं आएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर गौर किया जाए तो इन फ़करात में हम कह रहे हैं वाकिफ होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट वाइज टू। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 को समझने के बाद अब आते हैं मुकम्मल स्ट्रक्चर की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज़ करना होगा सब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, यानी किसी चीज़, शख्स या एनिमल का नेम भी हो सकता है, और प्रोनाउन यानी आई, वी, या ही, शी, इट भी हो सकता है। इसके बाद आ जाया करेगा गेट वाइज टू। गेट ये मेन वर्ब है जो अपना फॉर्म टेंस के लिहाज से इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ करना है हमें वेल। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं। वो मुझसे अच्छी तरह से वाकिफ है। ही गेट्स वाइज टू मी वेल। ही गेट्स वाइज टू मी वेल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए गेट के साथ एस का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। चोर इस घर से अच्छी तरह से वाकिफ था, ये सिंपल पास्ट टेंस है। सो हियर वी हैव टू चेंज द फॉर्म ऑफ गेट। ये सिंपल पास्ट टेंस है और यहाँ हमें गेट का फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, यानी हमें लिखना होगा गोट। सो द thief got wise to this house well. The thief got wise to this house well. Next example for better understanding, वो तुम्हारी चालों से अच्छी तरह से वाकिफ है। She gets wise to your tricks well. She gets wise to your tricks well. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you. It can take you from basic to advanced level. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। One more example for better understanding, मैं तुम्हारी भाई से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। आई गेट वाइज टू योर ब्रदर वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। वो तुमसे अच्छी तरह से वाकिफ है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश।